Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to look at the relationship between average cost, average variable cost, average fixed cost, and marginal cost of production. Okay, so let's start. First, let me define all these costs. So first, average cost. Average cost. We know it with AC, average cost. It represents the per unit cost of production. Cost of production. That is, if you want to produce 1 unit of output, how many unit or how much cost is incurred on that produce. Okay, so AC is the ratio of total cost divided by number of units of output produced. Okay, तो एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना कॉस्ट आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा एवरेज कॉस्ट. So it's a ratio of total cost divided by total output produced. Second, average variable cost, ABC. Okay, it represents the per unit variable cost of production. पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब आपने एक यूनिट आउटपुट इंक्रीज किया या डिक्रीज, आपने एक यूनिट से चेंज किया तो उसके लिए आपने जैसे यहाँ वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल फैक्टर की वजह से कॉस्ट में चेंज आना. वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर. तो लेबर आपने एक इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ आउटपुट, how many units of labor you employed into their wages, the price paid to that labor. Okay, so ratio of total variable cost divided by Q, and as we know variable factor is labor, so when you pay wages to labor you will get this particular expression. Your average variable cost is the ratio of total variable cost to the number of output produced, or it's a ratio of wages into labor divided by Q. Okay, now third, average fixed cost. Okay, you can say it's a per unit fixed cost of production. Fixed cost of production. Okay, HC is the ratio of total fixed cost divided by number of output produced, कि एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? प्राइस पेड टू कैपिटल इनटू कैपिटल. के क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है डिवाइडेड बाय क्यू. ओके, नाउ फोर्थ, marginal cost. It's an extra or the additional cost. Cost of production. Okay, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहोगे या प्रोड्यूस करते हो तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से आपकी जितनी कॉस्ट आती है वो होती है मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, फॉर एन एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड. ओके, तो इसको आप दो तरीके से लिखते हो, मार्जिनल कॉस्ट, total cost n minus total cost n minus 1. Okay, or marginal cost is equals to differentiation of total cost divided by q, or you can say TVC divided by like this, partial derivative of total cost with respect to q. You can say change in total cost as a result of change in output unit of production, or you can say change in total variable cost as a result of change in 1 unit of output. Okay, these are the two formulas for marginal cost. n क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इनपुट यूज्ड और नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. अगर आपका n इज इक्वल्स टू 10 है, ओके, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा? n माइनस वन क्या हो जाएगा? 9. तो आपने
क्या है n, क्या है q। जब आप लाइक 9 प्रोड्यूस कर रहे थे आउटपुट, 9 से आपने 10 किया, q 9 था, 9 से 10 किया, तो इसमें आपकी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, कितना डिफरेंस आया। जब आप 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, अब आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, टोटल कॉस्ट कितना है। सपोज यहाँ आपकी टोटल कॉस्ट थी 10, यहाँ थी 12, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 2, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 2। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 to produce one additional unit, and in moving from 9 to 10 you need to pay marginal cost which is equals to 2. Okay, now as we know total cost is equals to total cost is equal to total variable cost plus total fixed cost। तो हम लोग एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट भी डिराइव कर सकते हैं। TVC is equals to average variable cost into Q, and similarly TFC is equals to average fixed cost into Q, and as we know that the TVC is W into L, so ABC into Q, here W into K is equals to AFC into Q। ओके, अब दो तरीके से टोटल कॉस्ट के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। ओके, फर्स्ट TC we called it C is equal to TVC क्या है, ABC into Q plus AFC into Q। Okay, this is one function for total cost। Second, C is equals to WL plus R। okay, यहाँ प्राइस ऑफ कैपिटल है R की। दिस इज सेकेंड फंक्शन। जब भी हम आइसो कॉस्ट फंक्शन पढ़ते हैं वहां पे हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से ही दिखता है, where total cost is equals to W into L plus R into K। Okay, W into L is your total variable cost, R into K is your total fixed cost, C is your total cost। Okay, now जब भी आप इन एक्सप्रेशंस को Q से डिवाइड करोगे you'll get the average number, you left out with ABC, AFC and average cost। Okay, now we'll look it graphically all these expressions। ग्राफिकली हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं इन सब ग्राफ्स को। So on y-axis you have average cost, average variable cost and average fixed cost plus marginal cost, and on horizontal axis you have Q, output produced। Okay, so we got U shape average cost curve, which means up to one point, let's say this point, this is not exactly the U shape, get shape like this। Okay, this is your average cost curve। U shape curve क्या बताता है, up to a point average cost is falling, that means up to this point, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। आफ्टर दिस पॉइंट इट विल राइज। अगर आप इस पॉइंट के बाद आउटपुट इंक्रीज करते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है राइज होगी। ओके, नाउ सेकेंड, average variable cost। Okay, so you will get this type। Okay, sorry, you will get this type of curve। This is your average variable cost curve। Okay, ABC curve, ABC। Okay, this is your marginal cost curve। Okay, marginal cost curve।
Okay, now we are left with average fixed cost curve. Okay, you will get this type of average fixed cost curve. ओके एंड अभी आपको लग रहा होगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का जो अभी इस तरफ गैप है वो इतना ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम क्यों हो गया? रीज़न क्या है? इनिशियली आपकी एवरेज फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इनिशियली आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। तो इनिशियली आप कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके, वाइल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो तो फिक्स्ड है, वो तो रहना ही, आप जीरो प्रोड्यूस करो तभी वो कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगी, ओके। तो इनिशियली आप कम आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, इसकी वजह से आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहती है एंड इसकी वजह से क्या है, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में ये गैप ज़्यादा रहता है, ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाता है, ओके, ये गैप कम होते जाता है। रीजन क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती है, ओके। सो ग्राफिकली हम लोग एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एंड जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व्स को कट करता है वो मिनिमम पॉइंट होता है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर हियर। जहाँ पे भी एवरेज कॉस्ट कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स को इंटरसेक्ट करता है वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है, ओके, इस तरीके से। तो एवरेज कॉस्ट कर्व, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ओके। इन केस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा आपकी टोटल कॉस्ट जो है कम होती जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होती जाएगी। तो एट पॉइंट ए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, एट दिस पॉइंट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ओके, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो आपको एक रिलेशन पता चला, जहां पे भी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम होता है। दैट मीन्स जितना अप टू दिस पॉइंट आपकी एवरेज कॉस्ट जो है फॉल की है, आफ्टर दिस पॉइंट अगर आप आउटपुट बढ़ाते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है राइज करेगी, ओके। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट बढ़ गई है अब, ओके। बिफोर दैट आपकी एडिशनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या थी? बिलो थी एवरेज कॉस्ट करके। तो अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे थे आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होती जा रही थी। बट आफ्टर पॉइंट ए जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगे, इस पॉइंट के बाद अगर आप आउटपुट बढ़ाते हो, स्टिल आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, तो आपकी एवरेज कॉस्ट राइज करेगी। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है राइज कर रही है, एडिशनल कॉस्ट राइज कर रही है, ओके। एट पॉइंट बी your marginal cost is equals to average variable cost and this is the minimum of average variable cost. Okay, at this point average cost is minimum. After this point जैसे जैसे आप जो है आफ्टर दिस पॉइंट जैसे जैसे आप क्यू बढ़ाते जाओगे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है राइज करती जाएगी। बिलो दिस पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फॉल कर रही है, ओके। आफ्टर दिस पॉइंट इट विल राइज। सो दिस इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे क्यू बढ़ते जाएगा, यूटिलाइजेशन कैपिटल का बढ़ते जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होती जाएगी, ओके। सो दिस इज अ ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ ऑल दीज कॉस्ट कर्व्स एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर द रिलेशनशिप बिटवीन दैम एंड इंडिविजुअली आई हैव मेड 2 videos on these relation about marginal cost and average cost and average variable cost and with their productivity. So you can go through those videos as well. So we are done with this video. Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.